بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کے مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری نوری مخلوق، جو کہ نور سے پیدا کیے گئے تھے، جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کے ہاں نہ عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے، جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، اور انہیں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ اپنے خالق کو مالک جانیں، اس سے شادمان ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اور عبادت کریں۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر بلا کسی کم و بیشی اور شک کے ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 140,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کے بابائے آدم تھے۔ سموم جن کو زمین پر بھیجا گیا تھا۔ سموم جن کو زمین پر 300 سال گزارنے کے بعد اپنی نسل کی مخالف جنس ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں یہ قوم جنات اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایتی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیا کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھاک بٹھا کر رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی وہ نہایتی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات بھی سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرز اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ بھی مارے گئے، اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز میں کی، اور اسے عبادت، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا عبادت گزار
रियाजत करने वाला और जाहिद बंदा बन गया, और इसमें इसका कोई भी सानी ना था। हिकमत व दानश्वरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत व रियाजत की वजह से इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मौल्लिम मुकर्रर कर दिया गया, और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हज़रत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का ख़जानची था, और इतने हज़ार बरस तक वो फरिश्तों का साथी रहा। वो 20,000 साल तक फरिश्तों को दुआ सुनाता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मिंबर के नीचे हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसके दर्स व तदरीस को सुना करते थे। लेकिन अल्लाह ताला को इस बात का नजूबी इल्म था, ये असल में लैलैन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद ज़लील होगा, और अपने अंजाम से गाफिल इस अज़ाज़ील का ख़ात्मा कुफ्र की हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ अज़ाज़ील ने लोहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबारत तहरीर की गई, जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अज़ाज़ील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतानुर रजीम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह ने अर्ज़ किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं उस मलऊन को देखना चाहता हूँ, जिस पर अल्लाह की जानिब से अर्ज़ किया गया, तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे इस सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलऊन कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मज़ीद इबादत और तौबा में मसरूफ़ रहने लगा, यहाँ तक कि हज़ारों साल गुज़र गए। जब एक रोज़ अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी को लाया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, और ये बग़ैर रूह के 40 साल तक उसी हालत में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुज़रते तो घबरा जाते। इनमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये इसके पास से गुज़रता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उसके जिस्म से एक आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती हुई मिट्टी के ठिकरी से निकलती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, और वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेज़ी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और इन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तुमने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। लिहाजा फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से कहा,
तुम ने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसे इंसान को सिजदा नहीं करूँगा जिसे तुमने सड़े हुए खनखनाते हुए गारे से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम मरदूद हो चुके हो और क़यामत तक तुम पर मेरी फटकार रहेगी। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, मैंने तुम्हें मुतय्यन वक्त के दिन तक की मोहलत दी। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे तुम्हारी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाकर उन पर हमला करूँगा, और मैं इन पर हमला करूँगा आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से ज़लील व ख्वार होकर निकल जा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इनमें से जो भी शख्स तेरा कहना मानेगा, मैं उन सब को जहन्नुम से भर दूँगा। और यूं बारगाह खुदावंदी से धत्कार जाने के बाद अज़ाज़ील इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रऊनियत की बिना पर उसकी हज़ारों साल की इबादत व रियाजत ज़ाया हो गई और उसे अर्श से उठाकर फ़र्श पर पटक दिया गया। इस्लाम के अलावा दूसरी मजहबी किताबों और अकीदों में भी इब्लीस या अज़ाज़ील का ज़िक्र मिलता है। यूनानी किताबों में भी उसे अपोलियन और किताब मुक़द्दस में लूसीफ़र या यास्टीन कहा जाता है। ज़माने कदीम से ही एक मुनफरिद मज़हब इस शैतान या लूसीफ़र की पूजा करते आ रहे हैं, जिनका मानना यह है कि खुदा से लूसीफ़र का बगावत करना बिल्कुल दुरुस्त था। वो अज़ाज़ील को एक अजीम क़ुव्वत करार देकर खुदा की मुखालिफ में खड़ा करते हैं और शैतान की इबादत करते हैं। इस मज़हब के मानने वालों को सैटिनिस्ट भी कहा जाता है। रिवायतों के मुताबिक इब्लीस की मौत का वक्त इसराफील के पहले और दूसरे सूर फूंकने के दरमियान का वक्त है, जब उसे दी गई मोहलत पूरी हो चुकी होगी और वह ज़लील व ख्वार हो जाएगा। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े महशर में खुदा के फ़ैसले के बाद इब्लीस अपने परवरदिगार से ऐलान बरात करते हुए कहेगा कि तुम अपने गुनाहों के खुद ज़िम्मेदार हो। नेज़ वो कहेगा कि खुदा ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, और मुझे तुम पर किसी किस्म का तसल्लुत हासिल नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा, ताकि तुम क़यामत तक रुस्वा और लानती ठहरा। अल्लाह हमें शैतान व मरदूद से महफूज रहने की ताकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।